بلوچستان میں قیام امن کے لیے حکومتی کوششیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم دہشت گردوں سے لڑائی میں زخمی ہونے والے بہادر جوانوں کی تیمارداری کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ بلوچستان میں امن و امان سے متعلق اہم اجلاس ہوگا۔ وزیر اعظم کو کلات حملے اور بدامنی کے حالیہ واقعات پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں بلوچستان میں قیام امن کے لیے سخت فیصلے کیے جائیں گے۔ اجلاس میں گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور عسکری حکام بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس میں شرکت کے بعد وزیر اعظم گورنر ہاؤس جائیں گے۔ وزیر اعظم سے پارلیمنٹیرینز اور سیاسی رہنماؤں کی بھی ملاقاتیں شیڈیول۔ دورہ کوئٹہ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے سامنے سوال یہ ہے، آرمی ایکٹ کا اطلاق کس پر ہوگا؟ 21ویں ترمیم میں سیاسی جماعت کو باہر رکھا گیا تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل کا سیولینز کے ملٹری ٹرائل کے کیس میں سوال، ریمارکس دیے، خدا نخواستہ پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور جی ایچ کیو پر دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ پر حملے کا ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالت میں چلے گا۔ جی ایچ کیو پر حملے کا کیس ملٹری کورٹ میں چلے گا۔ میری نظر میں تینوں حملے ایک جیسے ہی ہیں، تو تفریق کیوں اور کیسے کی جاتی ہے؟ وکیل خواجہ احمد حسین نے دلائل میں کہا کہ عدالت ایسا دروازہ نہ کھولے جس سے سیولینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو۔ جسٹس امین الدین خان بولے، ہم کوئی دروازہ نہیں کھول رہے، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے اپیل منظور کی جاتی ہے یا خارج کی جاتی ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے، کیا دھماکہ کرنے والے اور عام سیولینز میں کوئی فرق نہیں؟ کیس کی سماعت جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات ہونے والے 3 نئے ججز نے کام کا آغاز کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سرفراز ڈوگر نے 3 کیسز کی سماعت کی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سومرو کی عدالت میں صرف لا آفیسر پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے تعینات ہونے والے جسٹس محمد آصف کے پاس کورٹ روم 13 میں 2 کیسز آج سماعت کے لیے مقرر۔ وکلا کے پیش نہ ہونے پر کئی کیسز کی سماعت ملتوی۔ وکلا کی عدم پیشی پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی کیسز کی لسٹ جلدی ختم ہو گئی۔ جسٹس طارق جہانگیری کی عدالت میں بھی کیسز زیادہ تر وکلا کی عدم پیشی پر ملتوی۔ جسٹس بابر ستار کی عدالت میں ہڑتال کے باوجود کچھ وکلا پیش ہوئے۔ جسٹس انعام امین منہاس اور جسٹس اعظم خان کی عدالت میں وکلا پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تینوں بارز کی ہائی کورٹ ججز کے تبادلوں کے خلاف آج ہڑتال۔ شہر اقتدار کے وکلاء نے تمام عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ریاست علی آزاد نے کہا، وکلاء عدالتوں میں پیش نہ ہوں، آج ہڑتال ہے۔ وکلاء کی جانب سے ڈسٹرکٹ کورٹس میں آل پاکستان لائرز کنونشن کا انعقاد کیا جائے گا۔ لائرز کنونشن میں وکلاء ججز تعیناتی کے معاملے پر اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ ہڑتال کی کال اسلام آباد بار کونسل، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اور ہائی کورٹ بار نے مشترکہ طور پر دی۔ وکلاء کی ہڑتال پر ڈسٹرکٹ کورٹس میں سخت حفاظتی انتظامات، پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ سندھ کابینہ نے ایگریکلچر انکم ٹیکس بل 2025 کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس بل جنوری 2025 سے نافذ ہوگا۔ آباد اراضی کو چھپانے کی صورت میں جرمانہ لگایا جائے گا۔ چھوٹی کمپنیوں پر زرعی ٹیکس 20% اور بڑی کمپنیوں پر 28% لاگو ہوگا۔ 150 ملین روپے زرعی آمدنی پر ایگریکلچر انکم ٹیکس سے استثنا ہوگا۔ 200 ملین روپے تک زرعی آمدن پر 1% ٹیکس لگے گا۔ 250 ملین روپے تک زرعی آمدن پر 2% ٹیکس ہوگا۔ 350 ملین روپے تک زرعی آمدن پر 4% ٹیکس لگے گا۔ 400 ملین روپے سے 500 ملین روپے تک زرعی آمدن پر 8% ٹیکس لگے گا۔ 500 ملین روپے سے زائد زرعی آمدن پر 10% ایگریکلچر انکم ٹیکس لگے گا۔ اجلاس میں سندھ کابینہ کی کارروائی ڈیجیٹلائز کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ یہ انسٹالڈ حکومت ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ یہ کھلے ماحول میں ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بھی نہ کرا سکے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی راولپنڈی میں عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعظم میں قومی اسمبلی میں تقریر کرنے کی ہمت نہیں۔ اس وقت ملک کے حالات اتنے تشویشناک ہیں کہ بتا نہیں سکتا۔ بلوچستان میں ایف سی کے 18 جوانوں کی شہادتیں ہوئیں۔ لاپتہ افراد بلوچستان کا بڑا ایشو ہے۔ حکمران ہوش کے ناخن لیں، ہمارا ملک کس ڈگر جا رہا ہے اور یہ لوگ عیاشیوں میں پڑے ہیں۔ 8 فروری کو صوابی میں احتجاج کریں گے اور یوم سیاہ بنائیں گے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے
8 फरवरी को पीका एक्ट और 26वीं तरमीम के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। हुकूमत जाली और नामुकम्मल पार्लियामेंट से काले कवानीन पास कर रही है। सहाफ़ियों के एहतजाज पर हुकूमत ने पीका एक्ट में तरमीम का इंदिया दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा मुशावरत से पीका एक्ट में तरमीम लाई जा सकती है, बताया जाए तरमीम की किस शिक पर एतराज़ है। पीका एक्ट सिर्फ डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। मुल्क में डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून नहीं था। डिजिटल मीडिया हर दिन रात ख़वातीन की हिरासमेंट होती है। क्या इन चीज़ों को देखने के लिए कोई साइबर इदारा है? ये कानून आज़ादी इजहार राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाया गया। इदारों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। कुछ लोग जो दिल में आता है बोल देते हैं। जिला कुर्रम में पायदार अमन का क़याम कैसे मुमकिन होगा? कुर्रम अमायदीन के जिरगे की दूसरी नशिस्त आज पेशावर में होगी। ज़राए के मुताबिक जिरगे में क़याम अमन पर तफसीली गुफ्तगू और अमायदीन को करीब लाने की कोशिश की जाएगी। कुर्रम के मसले पर बातचीत के लिए पहली नशिस्त कल इस्लामाबाद में हुई थी। उधर अमन मुआहदे की तहत कुर्रम में बंकर्स की मसमारी का काम जारी। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 24 बंकर्स मसमार किए जा चुके। बंकर्स की मसमारी का काम आज भी जारी रहेगा। उधर टल से पारा चनार अशिया खुरोनोश के काफिले की रवानगी आज मुतवक्के। 100 गाड़ियों का काफिला हंगू से रवानगी का मुंतज़िर। मुल्क भर के तालीमी इदारों में ड्रग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर दाखिला ने मुनशियात बेचने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। मुनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट्स पर चेकिंग मजीद सख्त करने की भी हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा मुनशियात के बड़े डीलर्स को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाया जाए। सरहदी इलाकों में ड्रोन्स के जरिए मुनशियात का कारोबार करने वाले अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाए। महदूद वसाइल के बावजूद ANF की कारकर्दगी लायक सताइश है। मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब से पाकिस्तानी खानदान की रिहाई और वतन वापसी पर ANF हुकाम की कारकर्दगी को सराहा। अफगान हुकूमत और फितनाल खारिज के गठजोड़ का पर्दाफाश। ज़राए के मुताबिक 30 और 31 जनवरी की रात डेरा इस्माइल खान में फितनाल खारिज के 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। हलाक दहशतगर्दों में अफगानिस्तान के सूबे बागदेश के नायब गवर्नर मौलवी गुलाम मोहम्मद अहमदी का बेटा भी शामिल। बागदेश के नायब गवर्नर के हलाक बेटे की शनाख्त बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ के नाम से हुई। हलाक दहशतगर्दों से अमरीकी साख्ता जदीद नाइट विजन और दीगर असलहा मिला। अफगान हुकाम बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ की लाश लेने से इनकारी। बदरुद्दीन अफगान तालिबान से तरबियत हासिल करता था, बाद में फितनाल खारिज का हिस्सा बना। अमेरिका के खिलाफ कनाडा और मेक्सिको ने हाथ मिला लिया। ट्रूडो और क्लॉडिया का मुश्तरका लाहे अमल तैयार करने पर इत्तेफाक। कनाडा और मेक्सिको का बाहमी तिजारत बढ़ाने का भी फैसला। कैनेडियन वज़ीर आज़म और मेक्सिकन सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। जस्टिन ट्रूडो ने कहा अमरीकी अशिया पर $106 अरब का जवाबी टैरिफ लगा रहे हैं। कनाडा के लोग अमरीकी मसनूआत का बाइकॉट करें, अपनी मुल्क की मसनूआत इस्तेमाल करें। क्लॉडिया शेनबाम बोली अमरीकी अशिया पर महसूलात की तफसीलात का ऐलान जल्द करेंगे। दूसरी जानिब कनाडा और चीन का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अमरीका की शिकायत लगाने का भी ऐलान। टैरिफ से बचने के लिए कनाडा अमेरिका की 51वीं रियासत बन जाए। सदर ट्रंप की फिर पेशकश। कहा कनाडा के लोगों के लिए बहुत कम टैक्स और कहीं बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा। टैरिफ से अमरीकियों को थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन नताइज शानदार होंगे। सैकड़ों अरब डॉलर सब्सिडी के बगैर कनाडा अपनी कदर खो देता है। हमें कनाडा की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हमारे पास लामहदूद तवानाई है। अपनी कारें खुद बनाना चाहिए। ये अमेरिका का सुनहरी दौर होगा। अमेरिका के मामलात अब अक्लमंद हाथों में हैं। इसराइल से रिहाई पाने वाले कुछ फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क में जगह दे सकते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने बता दिया। हाकान फैदान ने कतर के दौरे के दौरान कहा कि तुर्किया इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के मुआहिदे के तहत कुछ फ़लस्तीनी कैदियों को ले सकते हैं। तुर्किया दीगर ममालिक के साथ मिलकर अपना किरदार अदा करेगा ताकि जंगबंदी का मुआहिदा बरकरार रह सके। पाकिस्तान की मेज़बानी में चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन जारी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी दूसरे मरहले में टूर के दौरान आज मुल्तान से बहावलपुर पहुंचेगी।
ट्रॉफी को 14 दिन के सफर के दौरान हैदराबाद भी ले जाया जाएगा। ट्रॉफी का सफर 14 फरवरी को कराची में इख्तिताम पजीर होगा। दूसरी जानिब मेगा इवेंट के लिए फिजिकल टिकट्स की फरोख्त का आगाज आज से होगा। और मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्द और खुश्क मौसम का राज। मुल्क के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी ने नज़ारे हसीन बना दिए। खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर में सफ़ेद मोतियों की बरसात। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल से 4 रोज़ा दौरा चीन पर रवाना होंगे। बीजिंग में चीनी सदर, वज़ीर आज़म और दीगर सीनियर चीनी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। इक़्तिसादी और तजारती ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन, CPEC और मुस्तक़बिल में राबताकारी के मंसूबे शामिल। दोनों ममालिक आलमी और इलाकाई जियोपॉलिटिकल सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल करेंगे। सदर जरदारी 9वें एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज। 4 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम 9 फरवरी तक जारी रहेगी। वजीर आज़म ने बच्चों को कतरे पिलाकर साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। कहा, बाहमी ताउन के जरिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो का खात्मा होगा। पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों को पोलियो से महफूज करेंगे। कोयटा में पोलियो मुहिम का आगाज कल से होगा। उधर जमरोद में इंसदाद पोलियो मुहिम की हिफाजत पर मामूर पुलिस टीम पर हमला। पुलिस अहलकार शहीद हो गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद, मुल्जिमान की तलाश जारी। लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। वफ्द ने गवर्नर पंजाब को FBR और LGS से मुतालिका मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने कहा, रियल स्टेट मुल्क की बड़ी इंडस्ट्री है। रियल स्टेट इंडस्ट्री मजबूत होगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा और मईशत मजबूत होगी। रियल स्टेट इंडस्ट्री पर बेजा टैक्सेस लगाकर मुल्क का नुकसान किया गया। टैक्सेस के हवाले से तजावीज़ क़यादत तक लेकर जाऊंगा। गवर्नर पंजाब का डीलर्स और बिल्डर्स के मसाइल के हल के लिए फोकल पर्सन और कमेटी बनाने का ऐलान। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और दीगर के खिलाफ 708 अरब रुपए से जायद का रेफरेंस में नामजद मलिक रियाज के फ्रंटमैन फैसल सरवर कुरैशी की मुल्क से फरार होने की कोशिश नैब ने नाकाम बना दी। जराये के मुताबिक मुलजिम फैसल सरवर कुरैशी को ऑफलोड कर दिया गया। मुलजिम फैसल सरवर कुरैशी बहरिया टाउन कंट्री मैनेजर शाहिद कुरैशी का भाई और मलिक रियाज का फ्रंट मैन है। मलिक रियाज ने अपने 5 फ्रंट मैन्स के जरिए सरकारी जमीन जाल साजी से खरीदी है। गजा में जंग बंदी के बाद मगरबी किनारे में नस्ल कुशी का अमल तेज। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में एक नौजवान और मुअम्मर शख्स को शहीद कर दिया। जंग बंदी के बाद मगरबी किनारे में अब तक 27 फलस्तीनी शहीद हो चुके। उधर इसराइली फौज ने जनीन कैंप में 23 घरों को धमाके से तबाह कर दिया। जनीन ऑपरेशन में 15,000 फलस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेघर कर दिया। इसराइली आबादकारों ने तारीखी कस्बे सलवान के कब्रिस्तान पर भी कब्जा कर लिया। कतरी वज़ीर आज़म का इसराइल और हमास पर दूसरे मरहले के मुज़ाकरात पर जोर। कहा, दूसरे मरहले के मुज़ाकरात पहले मरहले के 16वें दिन शुरू होना चाहिए थे। हिज़्बुल्लाह ने अपने 2 शहीद सरबराहों की नमाज जनाजा और तदफीन का ऐलान कर दिया। शहीद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफ़ीउद्दीन की तदफीन 23 फरवरी को होगी। हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह 27 सितंबर को इसराइली हमले में शहीद हुए थे। एक हफ्ते बाद इसराइल ने हाशिम सफ़ीउद्दीन को भी शहीद कर दिया था। हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम का कहना है कि हसन नसरुल्लाह को बैरूत और हाशिम सफ़ीउद्दीन को कनून में दफन किया जाएगा। इसराइल की तरफ से जनाजे की इजाज़त ना मिलने पर दोनों की अमानता तदफीन की गई थी। अमेरिकी एयरलाइन का एक और तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका में टेक ऑफ के दौरान मुसाफिर तैयारे में आग लग गई। ह्यूस्टन के जॉर्ज बुश हवाई अड्डे पर वाकया पेश आया। यूनाइटेड एयरलाइन की परवाज ह्यूस्टन से न्यूयॉर्क जाने वाली थी। टेक ऑफ के दौरान तैयारे के इंजन में आग भड़क उठी। तमाम मुसाफिरों को फौरी तौर पर तैयारे से नीचे उतार लिया गया।